सांगीर प्लास्टिक के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आप सभी पधारे हुए महानुभावों का सांगीर प्लास्टिक की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज स्वामी जी के निर्देशन में एक दिवसीय नवचंडी यज्ञ संपूर्ण हुआ। आप सब लोगों ने दर्शन किए और बहुत ही सुंदर वातावरण रहा। पिछले 25 वर्षों से आदिवासी, वनवासी एवं ट्रिबल सोसाइटी में सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार एवं धर्म परिवर्तन न हो, इसके विशेष कार्य स्वामी जी ट्रिबल एरिया में कर रहे हैं। बरूमाल धाम भव्य सुंदर भावेश्वर का सुंदर मंदिर है, यज्ञशाला है, वेदशाला है एवं 700 आदिवासी क्षेत्रीय लड़कियों का विद्यालय संचालित हो रहा है। नर्सिंग कॉलेज भी तैयारी में है। अप्रैल 2025 में भावेश्वर भगवान शिव का भव्य उत्सव आयोजित है। इसी श्रृंखला में सतचंडी यज्ञ का पूजा पाठ व अनुष्ठान पिछले 3 साल से प्रतिदिन 25 सुयज्ञ पंडितों द्वारा अनुवृत्त चल रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में यज्ञ व प्रवचनों द्वारा सबको अपने सनातन धर्म के प्रति जागृत करना, सबका कल्याण करना, कुशलता व समृद्धि उत्थान के लिए स्वामी जी निरंतर कार्य करते रहते हैं। मैं हमारे खिड़की के सरपंच श्री शंकर भाई से निवेदन करता हूँ, आप यहाँ के राजनेता भी हैं तो अपने उद्गार प्रकट करेंगे। हमारा अहोभाग्य है और ये भाग्य के निर्माता हमारे मंदाना जी है। मंदाना जी परिवार जब से मोतीवाड़े में आए हैं तब से हम उनके साथ जुड़े हैं और उन्होंने हमें कर्म और धर्म दोनों परिभाषाओं में कैसे जीवन आगे बढ़ाया जाता है वो हमें मार्गदर्शन दिया है। उसी में आज हमें एक दिव्य महाराज जी के दर्शन करवा रहे हैं और उनके अमृत वचन हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उन विषय में आज एक अच्छा सा नवचंडी यज्ञ हुआ। जो हमारे शास्त्रों कहते हैं कि यज्ञ से हमारे कितने किलोमीटर तक के लोगों को उसका लाभ मिलता है, उनके जीवन में एक पॉजिटिव संचार होता है। तो ऐसा कार्यक्रम था। उसमें आज जो हमारे विद्यानंद जी महाराज जी महामंडलेश्वर जी पधारे हैं, तो हम सभी सांगीर परिवार के लोगों की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और महाराज जी जो है उन्होंने जो हमारे आदिवासी युवाओं के लिए एक ज्योति जगाई है। मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादातर गुजराती लोग हैं तो थोड़ा गुजराती में भी बोलना चाहूँगा कि गुजराती में बोलो। जे અમારા ઘણા વડીલો છે એ અહીંયા આ સનાતન ધર્મના અમારા અખાનંદજી મહારાજ બિલકુલ કરેક્ટ જે અહીં આ આદિવાસી વિસ્તાર જે આદિવાસી તો હતા જ પણ શિક્ષણનો પણ અભાવ અને એ અજ્ઞાનતાના અંધકારમાં જીવતા હતા અને આ ધૂણી અખાનંદજીએ ધકાવેલી કે જ્યારે પગપાળા ગામડે 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 એ ધર્મ આપણા સનાતન ધર્મનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે નીકળતા અને ત્યારે તો કોઈ સુવિધા નહોતી। કોઈક જગ્યાએ તો બેલગાડામાં પણ બળદગાડામાં પણ એ આવતા, પાડાગાડામાં પણ જતા અમે પાડાગાડામાં। અને એ જે ધર્મનો પ્રચાર અને પ્રસાર આપણે જોયો છે। અને ત્યારબાદ આપણે શ્રી વિદ્યાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજજીનો જો આપણે જીવન ઇતિહાસ જોઈએ તો એમણે 10 વર્ષની ઉંમરમાં જ એમને એક દિવ્ય જ્ઞાન પ્રભુ તરફથી આપવામાં આવેલું કે તમારે આ જે અંધકારમાં અને અજ્ઞાનતામાં જીવી રહ્યા છે એવા ધર્મના કામ માટે જ તમારું જીવન નિર્વાહ કરવાનું છે। અને એમણે 22 વર્ષે તો દીક્ષા લઈને આ બધી ખબર ક્યાંથી કાઢીને આવ્યા છે? એમણે પોતાનું જીવન
સમર્પણ પર આપી દીધું અને એમણે કોઈ ગંગા તટે કે એવા કોઈ જગ્યાએ વિચરણ ન કરતા આપણા આદિવાસી વિસ્તાર ધરમપુર બરુમાળ આપણે સૌ ત્યાં દર્શન માટે શ્રી ભાવેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા છે. અને બાપુની આ મહારાજજીની તમે કૃપા જુઓ, એમની દીર્ઘદ્રષ્ટિ જુઓ કે એમણે એક જ વસ્તુ કે સનાતન ધર્મને જે આદિવાસીઓ છે કે જેમના જીવનમાં અંધકાર છે એમને કેવી રીતે જીવન જીવવું, એમને કેવા જે કુરિવાજો છે એમાંથી બહાર કાઢવા અને ધર્મની જ્ઞાન આપીને એમનું જીવન કેવી રીતે સાર્થક અને આગળ વધે એના માટે જ આખું જીવન એમણે સમર્પિત કર્યું છે. અને ખાસ કરીને ભાવેશ્વર મંદિર જેમણે જોયું હશે તેમણે મહારાજજીએ એક કૃપા દ્રષ્ટિ રાખેલી કે જેઓ 4 ધામ કે બીજા જે હજારો ધામ છે એ નહીં જઈ શકે, એ ફક્ત ભાવેશ્વરના ધામમાં જઈને બધા જ ધામોની અનુભૂતિ કરી શકે એવી ગોઠવણ કરેલી છે. અને આજે મને આનંદ થાય છે, હું પણ એક આદિવાસી સમાજમાંથી છું અને ત્યાં જે મહારાજજીએ એક દ્રષ્ટિ વાપરેલી છે કે જે મહિલાઓને સશક્તિકરણ કરવાની જે આજે આપણે વાત કરીએ છીએ એ વર્ષો પહેલાં એમના મનમાં આવી ગઈ હતી. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે હજારો આદિવાસી બાળાઓના જીવનમાં એક ખૂબ સારી રીતે આગળ વધી શકે એ માટે ત્યાં પ્રાથમિક શાળાથી લઈને ઉચ્ચ માધ્યમિક શાળા સુધીની તમામ વ્યવસ્થા બહેનોમાં બાળકીઓ માટે ફ્રી રાખેલી છે. એમને રહેવા જમવાથી લઈને બધું જ ફ્રી કરાવીને એમના જીવનમાં ખૂબ પ્રકાશ રેડી રહ્યા છે એવા મહામંડલેશ્વર શ્રી વિદ્યાનંદજી મહારાજ આપણા ત્યાં પધાર્યા છે. તો આજે એમને હું વાણીથી આપણા સર્વના જીવનમાં એક નવી ચેતના આવે એ માટે આપણે એમના પ્રવચનો સાંભળીશું. આપ ફરી હું એકવાર સાંગીર પરિવાર અને ખાસ આપણે જેમને કાકાજી તરીકે કહે છે એમણે કર્મની સાથે ધર્મ જે જોડીને આપણને સૌને આ હંમેશા આ કર્મની મહિમા અને ધર્મની મહિમા જે આ મોતીવાડા ગામમાં આપણને આપી છે એવા મંદાનાજી પરિવારને પણ હું વંદન કરું છું. અને ફરી મહારાજજી અને એમની સાથે આવેલા તમામ ભૂદેવોના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી વંદન. જય ગુરુદેવ. મહાદેવ મહાદેવ आवाज कर महादेव पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. या देवी सर्वभूतेषु बधाई ने बोलवानु सभी लोग बोलेंगे. या देवी सर्वभूतेषु बोली. शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता भक्तिरूपेण संस्थिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भाव भावेश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की भगवती जगदम्बे दुर्गा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरि बोल। पिछले कुछ समय से भगवती की प्रेरणा से 21 नवचंडी महायज्ञ करने का एक संकल्प उठा और ये यज्ञ की यात्रा अनेक आदिवासी विस्तार के गांवों में से गुजरते हुए आज मोतीवाड़ा में पहुंची है।
और ये मोतीवाड़ा भी मेरा बहुत प्रिय गांव है। यहाँ मेरे अनेक सारे शिष्य रहते हैं। मेरे गुरुदेव के भी बहुत सारे पुराने शिष्य भक्ति यहाँ रहते हैं। यहाँ हम वर्षों से सत्संग करने आते रहे हैं। पता नहीं वो लड़का बैठा है कि चले गया है। बैठा है, किधर है? अरे खड़ा हो जा। ये है। इसी के घर आता रहा हूँ मोतीवाड़ा में, इसके पिता के समय से, अनेक वर्षों से, और दैनिक रूप से सत्संग, भजन, पूजन, कीर्तन इस आदिवासी समाज में मेरे गुरुदेव ने जो परंपरा डाली थी उसी का निर्वाह करते हुए आगे चल रहा हूँ। और सभी को इस वैदिक मंत्र के आधार पर संगच्छध्वम संवदध्वम सन्नोज मनांसी जानताम, सबको साथ लेके चलो, सबके मन को जीतते हुए उनके मन के अनुरूप अपना व्यवहार करो, जिससे वे तुम्हारी तरफ आकृष्ट हों और सनातन धर्म के अनुयायी बने। और ऐसी बात बोलो, ये मेरे गुरुदेव हमेशा बचपन से मुझे सिखाया करते थे, जिससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी तुम्हारी तरफ आकृष्ट हो सके। जब कहीं मैं विद्वानों की सभा में जाता हूँ तो लच्छेदार भाषा बोलता हूँ। महात्माओं में जाता हूँ तो वेदांत को लेकर के बोलता हूँ। लेकिन जब आदिवासियों में आता हूँ तो ठेठ गामठी थी जाऊँ। और जैसे मेरे गांव के लोग बात को समझ सकें उस तरह से उनके सामने शास्त्र का प्रस्तुतिकरण करता हूँ, जिससे बात उनके पल्ले पड़े। और इसमें सबसे सरल भाषा भगवान वेदव्यास ने पुराणों की है। व्यास वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, उसके रचयिता हैं। और उसी के ऊपर आचार्य शंकर ने शांकर भाष्य लिखा है। लेकिन बड़ा धीर गंभीर प्रसंग है, वो नहीं चल सकता सब जगह। फिर उपनिषद हैं, वो भी वैदिक भाषा है, फिर भी उसमें आख्यानात्मक जो भाग हैं वो समझ में आ सकते हैं। लेकिन व्यास ने बहुत अच्छी परिकल्पना की और जन सामान्य तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए उन्होंने पुराणों की रचना कर दिया। पुराणों की जो शैली है बहुत सामान्य रूप से समझी जा सकती है। हमारे यहाँ एक द्राक्षा पाक होता है, एक नारिकेल पाक होता है। द्राक्षा पाक और नारिकेल पाक, नारियल अंदर से रसीला होता है, पानी पानी होता है, लेकिन ऊपर से अगर माथे पे पड़ जाए तो वृक्ष के नीचे बैठे हों आप और ऊपर से नारियल पड़े माथे के ऊपर, तो कपाल क्रिया हो जाए कि नहीं हो जाए? हाँ। कठोर लेकिन अंदर से रस। बाकी सभी ग्रंथों के अंदर नारिकेल पाक देखा जाता है और माठरी वृत्ति देखी जाती है, लेकिन पुराणों में द्राक्षा पाक, द्राक्ष खाने में भी मीठा और ऊपर से भी कोमल, आप उसे प्रेम से खा सकते हैं, अपने दांतों से चबा सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं। और भारतीय वृत्ति है इसमें, ये शास्त्रीय परिभाषा है हमारी।
भारतीय वृत्ति बहुत ही सरल होती है जिससे आप समझ सकें। जैसे कि मैं आजकल देवी भागवत की कथा कर रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ चंडी यज्ञ में थोड़ी सी कथा भागवत की, देवी भागवत की करता हूँ, श्रीमद् भागवत की नहीं, देवी भागवत की। कल तक हयग्रीव अवतार तक की कथा मैंने वहाँ सुनाई थी। बड़ी सरल भाषा, सरल प्रस्तुति और सरल भावों की अभिव्यक्ति होती है उसके द्वारा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ भगवान शेषशाही होकर के महाप्रलय काल में जब सर्वत्र जल ही जल होता है, विश्राम कर रहे होते हैं, उनके दोनों कानों से दो दैत्यों की उत्पत्ति हो जाती है, कर्णमैल से। एक से मधु नाम का राक्षस पैदा होता है और एक से कैठव नाम का राक्षस पैदा हो जाता है। तुम चिंता नहीं करना, तुम्हारे घर में कोई छोकरा कपूत पैदा हो जाए तो घबराना मत। जब भगवान के ही कान से राक्षस पैदा हो रहे हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यहाँ के ऊपर भगवान ही उनको सद्बुद्धि भी देते हैं और भगवान ही उनका विनाश भी करते हैं, उनका उद्धार भी करते हैं। अनेक वर्षों तक भगवान के साथ में युद्ध होता है। मधु राग है, कैटभ द्वेष है। राग और द्वेष ये दोनों आपके जीवन में जुड़े हुए हैं या नहीं? ये राक्षस आपके साथ है कि नहीं? हमें पोते कल्पना करो, राग छे कि नहीं? राग एटले अटेचमेंट, वस्तु माटे, व्यक्ति माटे तमने अटेचमेंट छे कि नहीं? लगाव है कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो। जो है उसको स्वीकार करो ना, इसमें शर्माने की क्या बात है भाई, है तो है। जब भगवान के कान से पैदा हुआ है तो हम भी क्या कर लें, हमारे साथ है तो है। और द्वेष ये कैटभ है, ये भी प्रत्येक प्राणी के साथ जुड़ा हुआ है। योग सूत्रकार ने बहुत सुंदर परिभाषा बनाई इसकी और कहा, जो सुख प्रदान करता हो वो राग, जो ही जिससे सुख मिलना शुरू होगा आप देखिए उसके प्रति आपका अटैचमेंट होता है कि नहीं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। मने बहु गमे छे, बस आटली बात आपणाમાં આવી ગઈ એનો मतलब રાગ ભાઈ આવી ગયા। અને આ મને જરાય ગમતું નથી, ફાવતું નથી। કોણ આવી ગયો? દ્વેષ ભાઈ આવી ગયા, कैठभ भाई આવી ગયા। રાગ એટલે મધુ અને દ્વેષ એટલે कैठभ। ભગવાનની સાથે પણ એનું હજારો વર્ષો સુધી યુદ્ધ થયું, હજારો વર્ષો। તો આપણી તો ઉંમર જ 100 વર્ષની છે, हम केवल 100 वर्ष तक का जीवन लेके आए हैं। अब इस 100 वर्ष के जीवन में संसार का व्यवहार भी करना है, अपने परिवार का भरण पोषण भी करना है, लौकिकता का निर्वाह भी करना है और राग और द्वेष से बचने का प्रयत्न भी करना है। इसी उम्र के अंदर करना है, इसी समय में करना है। ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, इस कथा को हम आपके मुंह से इसलिए सुनना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। भगवान वेदव्यास की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। संसार में ऐसा देखा गया है और आपका अनुभव होगा, ये जो भी श्लोक आ रहा है वो बिल्कुल आप में भी फिट बैठेगा और कहेंगे कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मूर्खेण सह संयोगो
विषादपि सुदुर्जरा है, विज्ञेन सह संयोग है, सुधारस समस्मृत है। मूर्ख के साथ में अगर संबंध हो जाए, संयोग हो जाए, तो जहर खाने से भी ज़्यादा खराब है। मूर्ख के साथ पाला पड़ जाए तो लोग कंटालोगे कि नहीं? जे તમારી કોઈ વાતને સમજવા તૈયાર જ ન હોય અને એને તમે ભાગવત વાંચીને સંભળાવવા બેસી જાઓ તો એને કંઈ પલ્લે પડશે કરો? मूर्खेण से संयोग है, विष से भी अधिक दुखदाई अगर कोई है संसार में तो मूर्ख व्यक्ति का संयोग है। इसलिए कभी भी प्रार्थना करना परमात्मा से तो यही करना कि अच्छे व्यक्तियों के साथ, बुद्धिशाली व्यक्तियों के साथ संबंध बने। कम से कम तुम्हारी बात को समझ के सम्मान तो देगा। एक साहित्यक महानुभाव ने तो लिखा, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन, जो बुद्धिशाली होगा वो काव्य शास्त्र के साथ में बैठेगा। कवि होगा, और कवि के लिए कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। हमारे दाहिमा जी जो है ना, ऐसे ही कवि भी हैं। ये भी रवि से ऊपर ही जाकर के और घूम के आ जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं। बढ़िया कविताएं लिखते हैं, बुद्धिशाली व्यक्ति है। नाम ही बुद्धि प्रकाश है। माता पिता ने पहले बुद्धि प्रकाश नाम रख दिया, बीके दाइमा। तो मित्रों, अच्छे लोगों के साथ बैठना ये सौभाग्य कहलाता है, और मूर्खों के साथ में बैठना दुर्भाग्य कहलाता है। क्योंकि आपकी बात समझे नहीं, आपको महत्व दे नहीं, आपकी बात का आदर करे नहीं, ऐसे लोगों के पास में बैठने के लिए कोई अर्थ ही नहीं होता है। अपने यहाँ कहावत ही चलती है ना, या क्यों मानस से भैंसनी आगर भागवत वाँचे छे। ऐसा ही बोल देते हैं ना कि भैंस के आगे भागवत, या तो भैंस की आगे बीन बजाए। बीन बजाना समझते हो ना? भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए। भैंस ऐसे ऐसे करती है, और वो बीन बजाने वाला सोचता है कि ये बहुत आनंद ले रही है, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। ऐसे लोगों से भगवान बचाए। और विज्ञेन से संयोग है, सुधा रस समस्मृत है। किसी बुद्धिशाली के साथ में आप जुड़ेंगे और बैठेंगे तो वह अमृत के समान आपका समय और आपका आनंद बढ़ा देगा। जिस तरह से अमृत पान करके व्यक्ति अजर अमर हो सकता है, वैसे ही महापुरुषों के साथ बैठ करके, संतों के साथ बैठ करके, विद्वानों के साथ बैठ करके, और आप अपने समय को बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं अपने शरीर में। 2 ज्ञानेंद्रियां, एक ज्ञानेंद्रिय एक एक व्यक्ति को होती है तो भी उसका आनंद लेता है। आपको मालूम है, हरण जो है वो श्रवणेंद्रिय प्रधान होता है। उसके सामने अगर सितार बजाई जाती है, बीन बजाई जाती है, झूम उठता है वो। 2 इंद्रिय प्रधान है सांप। सांप को चक्षुर इंद्रिय है, श्रवणेंद्रिय नहीं है, लेकिन भगवान ने 2 in 1 किया उसमें। इसलिए संस्कृत में सर्प को चक्षुश्रवा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? चक्षुश्रवा। चक्षु से ही वो देखता भी है और चक्षु से ही वह सुनता भी है। अगर वो सुनता न होता तो बीन बजाने के समय वो क्यों मस्ती से झूमता? अब कान तो नहीं दिखाई देता वहाँ पर, लेकिन केवल आँख है।
अब सोचिए वो 2 इंद्रिय वाला मस्त हो सकता है, आपके पास तो 5-5 इंद्रियां हैं भाई, है कि नहीं बोलो। इन 5 इंद्रियों में से इन 2 इंद्रियों के ऊपर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, एक चक्षुरेंद्रिय और एक श्रवणेंद्रिय। श्रवणेंद्रिय आपको वस्तु का बोध करवाएगी, श्रवणेंद्रिय वस्तु का बोध करवाएगी, और चक्षुरेंद्रिय जिसका बोध आपने किया है उसका प्रत्यक्ष करवाएगी और आप उसका दर्शन कर सकेंगे। कम से कम हम इन 2 इंद्रियों का भी आनंद ले लें, इन 2 इंद्रियों के साथ भी मिलकर के बैठ लें और उसका उपयोग सदुपयोग कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। नारायण, ये जो श्रवण है वो भी 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विकम वेद शास्त्रादि, सात्विक जो श्रवण होता है, वेद का श्रवण। अब ये ब्राह्मण लोग वेद मंत्र बोलेंगे, मान लीजिए एक मंत्र कहूँगा बोल दो, अभी बोल देंगे, आप केवल सुनेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं आप, लेकिन श्रवण करने से भी सात्विकता का संचार होगा। कोई भी एक मंत्र बोल दो, एक ये वेद शास्त्र है और इसका श्रवण किया आपने, इससे सात्विकता का संचार होगा, इसलिए वेद शास्त्र का श्रवण करना ही चाहिए। अच्छा देखो, वेद मंत्र आपको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन श्रवण करने का भी फल है, इसलिए पाठक होते हैं ये लोग, पाठक। वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? पाठक। और जितने भी पाठक होते हैं वे स्वयं भी पुण्य कमाते हैं और पाठ के द्वारा आपको भी पुण्य प्रदान करते हैं, इसलिए ये सात्विक श्रवण है। साहित्य का श्रवण करना, काव्यों का श्रवण करना, ये राजस है, और युद्ध संबंधी बातों का श्रवण करना ये तमोगुणी है, तामस है। श्रवण भी 3 प्रकार का, तो कौन सी बातें सुननी चाहिए? जो सात्विकता का संचार करे, जो आपके हृदय के अंदर दोष हो उस दोष को निकाल करके और सात्विकता को स्थापित कर दे, ऐसे ही शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। उन्हीं में से एक ये देवी भागवत महापुराण है, जिसके अंदर केवल और केवल माँ भगवती पराम्बा दुर्गा का स्तवन हुआ है, उन्हीं की कीर्ति का गुणगान हुआ है। उत्तमम मोक्ष फलदम, श्रवण का भी उत्तम फल क्या? तो मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, सुनने के लिए संसार में बहुत सारी बातें हैं और सुनते भी हैं आप, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनते हैं आप, लेकिन फल क्या निकलता है? कल्पना कीजिए, चिंतन कीजिए। अगर आपने उपनिषद का मंत्र सुना, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमदत, स्वाध्याय और प्रवचन से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये श्रवण हुआ। इस श्रवण का फल क्या निकला? आपकी रुचि होगी पढ़ने में, सत साहित्य को पढ़ने में, और उस सत साहित्य को पढ़ेंगे तो फल क्या निकलेगा? मोक्षदम। आपको किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दूसरा मंत्र है अग्निष्टोमाभ्याम यजेत स्वर्ग काम है, तुमको यज्ञ करना चाहिए। बोला किसके लिए? स्वर्ग काम है, स्वर्ग की कामना से। ये राजस श्रवण हो गया। श्रवण तो हुआ, अच्छा ही श्रवण हुआ, वेद का ही श्रवण हुआ, लेकिन फल क्या मिला? स्वर्ग। और स्वर्ग क्या चीज़ है? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब पुण्यों का क्षय हो जाता है तो उसके बाद ऊपर से उठा के नीचे फेंक दिया जाता है। ऐसा समझ लो ना, ताजमहल होटल है, या उससे भी कोई बढ़िया होटल हो तो मुझे मालूम नहीं है। ये स्वर्ग वही है,
आप जाओ, सूट बुक कराओ, कहते हैं 50-50 हज़ार रुपये का, 1-1 लाख रुपए का भी सूट होता है वहाँ पर। अब आपके पास 10 लाख रुपया है तो कितने दिन रह लोगे? 10 दिन मज़ा कर लो, फिर 11वें दिन क्या होगा? वो बड़ी बड़ी मूँछों वाले होते हैं वहाँ पर, जब आप जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जब पैसा ख़त्म हो जाएगा तो वही बड़ी बड़ी मूँछों वाले आएंगे और कहेंगे भाई साहब बाहर आइए, और बाहर विदा कर देंगे आपको। यही स्वर्ग है। जब तक आपका पुण्य रूपी करेंसी आपके पास में है तब तक आप स्वर्ग में हैं, और अंत में क्या होगा? जो ही वो पुण्य रूपी पूंजी आपकी खत्म होगी तो उठा करके आपको नीचे फेंक दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, यही तन कर फल, बोलो, विषय न भाई स्वर्ग हु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल। हे भाई, तुम्हें जो मनुष्य का शरीर मिला है इसका सबसे बड़ा फल यही है कि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर। विषय न भाई। अच्छा एक बार बोलो विषय, बोलो, विष प्लस ये, ऐसा करो, क्या हो जाएगा? इसका मतलब विष यानी जहर, और ये है संस्कृत में जो को संस्कृत में ये बोलते हैं, जो जहर के स्वरूप में हो उसका नाम विषय। अब आप विषय भोग रोज करते हो, यानी रोज टिक-20 की गोलियां खाते हो और बोलते हो कि हम मरे नहीं। ऐसा संभव है? विषयोपभोग करने का मतलब क्या हुआ? टिक-20 की गोलियां खाना विषय है, उस शब्द में ही जुड़ा हुआ है। यह जो विष जहर रूप हो उसका नाम विषय है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विषय न भाई। ये भाई, ये जहर खाने का काम बंद करो। तुम स्वर्ग की कल्पना करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी स्वल्प, स्वर्ग हु स्वल्प, थोड़े टाइम के लिए। जब तक आपके पास में माल है तब तक 5 स्टार होटलें, 7 स्टार होटलों के दरवाजे खुले हैं। मैंने कहा नहीं कि वो 10 दिन रह लोगे, 10 लाख है तो 20 लाख है तो 20 दिन रह लोगे, भाई 1 करोड़ है तो 100 दिन रह लोगे, बाकी तो वही मूछ वाला बाहर निकालने को आएगा। वैसे ही ऊपर से सीधा गिराते भी कैसे हैं? नीचे को माथा और ऊपर को पैर, और फिर नीचे पटका जाता है स्वर्ग से। तब स्वल्प, एक तो थोड़ा, और अंत दुखदाई। किसी भी व्यक्ति को आप सर के बल नीचे पटकोगे तो उसको आनंद मिलेगा कि दुख मिलेगा? दुख ही मिलेगा। इसलिए याद रखो, सात्विकम त्रिविधम प्रोक्तम उत्तमम मध्यमम अधमम। उसमें उत्तमम मोक्ष फलदम, उत्तम फल शास्त्र श्रवण का, पुराणों के श्रवण का एकमात्र वही है कि हम मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सके, वही फल हमको प्राप्त हो। और दूसरा फल है स्वर्ग। इससे स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन महात्म्य मोक्ष का है। और अधमम भोगदम प्रोक्तम, और अधम फल है लौकिक भोग, स्रग चंदन वनिता इत्यादि सांसारिक भोग, ये अधम फल है। अच्छा काम करके, और क्यों हम अधम फल प्राप्त करें? यज्ञ किया, देखो आज यहाँ के ऊपर एक यज्ञ हुआ, ये तो छोटा सा यज्ञ है, 4-5 घंटे का था, फिर भी मैं इसको महायज्ञ बोलता हूँ। काहे बोलता हूँ महायज्ञ? हमारे मीमांसा शास्त्र ने परिभाषा बनाई है यज्ञ और महायज्ञ की। व्यष्टि समष्टि संबंधात यज्ञ महायज्ञ। अगर व्यष्टि का संबंध है, केवल परिवार का संबंध है, तब तो वह यज्ञ है, और लोगों के लिए किया जा रहा है
तो फिर वो महायज्ञ हो जाता है, भले छोटा ही हो वो फिर महायज्ञ बन जाता है। तो आज मैं देख रहा था मानधना जी तो खुद बैठे ही बैठे थे, परिवार के लोग भी बैठे थे, लेकिन बाकी के लोग भी आ करके और स्वाहा स्वाहा सभी कर रहे थे, सभी लोग लाभ ले रहे थे उसका। तब फिर ये यज्ञ नहीं रह गया, क्या बन गया? महायज्ञ बन गया। समाज के भले के लिए जो किया जाए, लोकोपकार के लिए किया जाए, उसका नाम महायज्ञ होता है। तो आज सांगीर प्लास्टिक के अंदर इस कंपनी में एक पवित्रता का वातावरण निर्माण हुआ इन भूदेवों के द्वारा, और एक बहुत अच्छा सत्कर्म यहाँ के ऊपर किया गया, जिसका लाभ आप सभी लोगों ने बहुत प्रेम से लिया है। बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इतना कहूँगा, आज हमारे सुशील बाबू का कल हैप्पी बर्थडे है, और कल ही ये यहाँ होनी थी चंडी, ऐसी हमारे मानधना जी की इच्छा थी, लेकिन पहले से ही आगे आगे प्रोग्राम 21 नवचंडियों के निश्चित हो रखे हैं। अब कल यहाँ से पारडी जाऊँगा, मोतीवाड़ा से पारडी में ही है, फिर नानी डोल डोंगरी में है, फिर 14 तारीख को हमारे भक्त हैं जवेर भाई, उनके यहाँ पर है, फिर परवासा में, ऐसे सब क्रम लगा हुआ है। तो हमने कहा मानधना जी ऐसा करिए, सुशील बाबू को बुला लीजिए, एक दिन पहले ही पैदा कर देंगे। और आज हम आशीर्वाद के रूप में उनको ऊपर बुला करके और सम्मानित करेंगे, और फिर उसके बाद में अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। मधु और केटअप की बात रह गई है, वो कल पूरी कर दूंगा पार्टी के अंदर। खाली इशारा कर दिया तुमको, ये राग और द्वेष है। मधु और केटअप क्या है? यदि राग विषयों में करेगा, राग बढ़ता जाएगा। याद कर लीजिए इस पंक्ति को। यदि राग विषयों में करेगा, राग बढ़ता जाएगा। यदि द्वेष विषयों से करेगा, द्वेष दृढ़ता पाएगा। हमारे भोले बाबा कहते हैं, तज राग दे तज द्वेष दे, मन मैल सब धुल जाएगा। बाला चरण भोला ग्रहण कर, शांति अक्षय पाएगा। बालाचरण का मतलब होता है छोटा बच्चा, और छोटे बच्चों को देखो, कोई भी उठा के गोद में ले ले, कोई भी चूम ले, कोई प्यार कर ले, कोई उतार के नीचे रख दे, न उसको गुस्सा आता है, न किसी के प्रति राग होता है, न कोई द्वेष होता है। इसलिए मित्रों, राग और द्वेष इन दोनों से ही बचना चाहिए, तभी मधु और केटअप आपके हृदय से निकलेंगे और आपके हृदय में भगवत भाव का संचार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरे वक्तव्य को विराम देते हुए सुशील बाबू को ऊपर बुलाता हूँ स्टेज पर, और मुझे थोड़े चावल दे दो और चंदन दे दो, उनको तिलक करूँगा।